Hello and welcome back to my channel, which is AMS MBBS Lectures. In today's session, we're going to mainly discuss about the Koch postulate, which is an important topic from the theory point of view, guys, where we're going to discuss the four important postulate given by Koch, given by Robert Koch, I mean to say. So this concept of Koch postulate was given by the scientist Robert Koch during 1843 to 1910, and multiple contributions है ये scientist के which I have mentioned over here, guys. ठीक है, इन सारी चीज़ों की details along with some various ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, there it would be an upcoming video where I'm going to discuss not only Robert Koch but various other scientists and their contributions in detail. But right now we're going to cover up something called as the Koch postulate in this video. So let's get started with that part. Koch's postulate, guys. Okay, before actually starting this thing, there are like four important postulates that Robert Koch has given. So what is the basis of this thing? Let's listen to this thing first of all. देखो, if I say there is any disease, okay, suppose कोई भी एक disease है, just for an example, the disease, if I'm going hypothetically, ABC disease है, और तो उसका जो causative agent होता है, तो जो भी इसका causative agent होगा, अगेन हाइपोथेटिकली आई एम गिविंग एन एग्जांपल, जैसे कि एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है, दैट आई एम सेइंग एबीसी डिजीज है, उसका पॉजिटिव एजेंट एक्स वाई जेड है. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई गो, देयर इज डिसऑर्डर कॉल्ड एज ट्यूबरक्यूलोसिस. So we know the causative agent comes out to be M. tuberculosis, right? M. tuberculosis as the causative agent. Another example, if I go with, we have malaria. We have malaria as the disorder, and we know the causative agent comes out to be Plasmodium, right? The causative agent comes out to be Plasmodium. तो ऐसे बहुत सारे देयर आर मल्टीपल डिस दैट वी नो. हाँ, सो एंड सो इज द डिजीज, तो सो एंड सो इज द पॉजिटिव एजेंट. फ्रॉम वेयर डू यू गेट द कंफर्मेशन दैट यप, इफ दिस इज द डिसऑर्डर, so this would be the causative agent for that particular relation to, okay, establish, okay, this particular causative agent has to satisfy or fulfill the Koch postulate. The four important Koch postulates should be satisfied in order to call that causative agent as the to call that organism as the causative agent of a particular disease. ठीक है, so in short, Koch postulate is basically a checklist होती है कहीं ना कहीं, that yes, अगर ये four important criteria या conditions satisfy होती है, then we can say with surety that yes, this particular microorganism is the causative agent of this particular disorder. ठीक है, अब एक एक करके जो चार पॉस्टुलेट है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉस्टुलेट, दैट इज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी डिजीज है गाइस, तो उस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करने वाला जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा उसके लीजन के साथ ही देखने को मिलेगा. I mean to say, suppose there is a patient coming to your clinic with a particular disease and we are suspecting so and so as the causative agent and so disorder. We are going to collect the specimen and send it to the laboratory. Accordingly, जो भी disorder है हम specimen लेंगे. अब इन सारी चीज़ों को understand करने के लिए I am just taking a hypothetical example as ABC as the disease which is caused by XYZ organism. ठीक है, so this is the disease over here and this is the causative organism over here. ठीक है, तो बस ऐसा एक एग्जांपल है यहाँ पे, तो याद रख, मतलब इजी होगा टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो अगेन एक हाइपोथेटिकली ऐड ऑन करूँ कि ये जो डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं एबीसी, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं. तो जो भी हम लोगों का डिसऑर्डर है जैसे कि रेस्पिरेटरी है, तो क्या स्पेसिमेन दोगे? स्पूटम सैंपल दोगे, या तो फिर आप नेजल स्वाब्स दोगे या थ्रोट स्वाब्स दोगे, है ना. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग स्पेसिमेंस दे सकते हैं डिपेंडिंग. तो अगर, तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट, क्या अगर जो भी हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिजीज. मतलब जैसे कि ये एबीसी जो डिजीज है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो इसके स्पूटम के अंदर हम लोगों का एजेंट पॉजिटिव आना चाहिए. वी शुड फाइंड द ऑर्गेनिज्म इन द स्पूटम एज प्रेजेंट. तो ये एक्स वाई जेड हम लोग को स्पूटम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. एक्स वाई जेड ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट. तो अब जाके वी कैन से यस, इट इज फर्स्ट क्राइटेरिया इज सैटिस्फाइड. सेकेंड क्राइटेरिया, अब आफ्टर कि जो हमने स्पूटम सैंपल दिया उसकी माइक्रोस्कोपी हो गई, यस हम लोग को ऑर्गेनिज्म मिल गया वहाँ पर, डन एंड डस्टेड, तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज डन. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आफ्टर डूइंग द माइक्रोस्कोपी वी आर गोइंग टू एक्सपोज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द कल्चर. है ना, स्पूटम सैंपल हो गया, माइक्रोस्कोपी से पता चल गया कि हाँ सो एंड सो जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्रेजेंट है, तो पहला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो गया. अब सेकेंड पॉइंट जो होता है, इट स्टेट्स दैट it should be possible to isolate that particular organisms in pure culture. मतलब जो भी स्पेसिमेन उन्होंने भेजा था स्पूटम सैंपल, वो हम लोग को कल्चर में आइनोक्यूलेट करना चाहिए एंड कल्चर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए. ठीक है, दैट इज गोइंग टू सैटिस्फाई द सेकंड क्राइटेरिया, दैट इज टू आइसोलेट द पर्टिकुलर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर्स फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिजीज. ठीक है,
First is constant association, second is to isolate it in the cultures, and the third criteria states that अब देखो हम लोग का कल्चर पॉजिटिव आ गया, मतलब वी हैव दैट कल्चर प्लेट एंड उसके अंदर हम लोग का हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज है वो आपके पास प्रेजेंट है, राइट. Now we are going to take these microorganisms and we are going to put it into the laboratory animals. ठीक है, we are going to inoculate that particular जो भी कल्चर से ऑर्गेनिज्म हम लोग को आइसोलेट हो गया है वो हम लोग लैबोरेटरी एनिमल्स के अंदर इनोक्यूलेट करने वाले हैं. एंड आफ्टर इनोक्यूलेशन इट शुड प्रोड्यूस द सेम डिजीज दैट इट इज प्रोड्यूसिंग इन ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस में जो डिजीज कॉज करवा रहा है वही सेम टाइप का डिजीज इट शुड प्रोड्यूस इन द लैबोरेटरी एनिमल. दैट इज इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द थर्ड क्राइटेरिया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड दैट इज, तो कहने का अर्थ ये था कि पहले वाले पॉइंट में इफ आई गो विद आप लोग को दैट एबीसी डिजीज के अंदर पहला क्राइटेरिया के हिसाब से कि जो भी लीजन से सैंपल हमने लिया था माइक्रोस्कोपी के बाद हम लोग को XYZ ऑर्गेनिज्म ही मिला. आफ्टर टेकिंग जो भी स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया था उसको हम लोग ने कल्चर के लिए एक्सपोज किया. आफ्टर एक्सपोजिंग टू द कल्चर अगेन हम लोग को XYZ ऑर्गेनिज्म ही देखने मिला उसके अंदर भी. अब उस कल्चर में से उस XYZ ऑर्गेनिज्म को मैंने आपके लैबोरेटरी एनिमल्स के अंदर इनोकुलेट कर दिया एंड उसके बाद जो डिजीज जनरेट हुई दैट डिजीज वाज अगेन ABC. तो यहाँ पे जो डिजीज जनरेट हुई दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जो प्रोड्यूस हुई दैट इज ABC, है ना. तो पहले 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए, डन. द नेक्स्ट फोर्थ क्राइटेरिया कहता है दैट इज अब जो लैबोरेटरी एनिमल था उस लैबोरेटरी एनिमल के अंदर से भी हम लोग जब उसको रीआइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से, ओके, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल एनिमल में से जब रीआइसोलेट करने वाले हैं इन प्योर कल्चर. तो अगर मैंने इस एनिमल के अंदर ABC डिसीज हुई, मैंने इस एनिमल में से ओके स्पेसिमेन निकाला एंड उसको डिटेक्ट किया फॉर दैट थिंग, अगेन आपको XYZ ही देखने को मिला उसके अंदर. So it will satisfy the fourth criteria as well. And so this is it. 4 criteria satisfy हो गए. Koch postulate is done. Hence what we can say that XYZ जो हमारा XYZ agent organism है, it is the causative agent for the ABC disease. ठीक है. But later on post this okay Koch postulate ये जो 4 थे इसके बाद एक later on एक और एक क्राइटेरिया ऐड करी गई थी. वो ये है, सिंपल है, वो थोड़ा बहुत सा यू कैन से इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है. मेरा कहने का अर्थ ये है, मेरा कहने का मतलब ये है दैट इज देखो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और पर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करवाया है, हमारा इम्यून सिस्टम विल ट्राई टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट, राइट. इट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज द एंटीबॉडीज, राइट, है ना. इम्यून सिस्टम जो होगा वो ऐसी थोड़ी बैठा रहेगा. इम्यून सिस्टम विल प्रोड्यूस समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रोड्यूसिंग द इन्फेक्शन, येस और नो, इनटू आवर बॉडी. तो अगर हम लोगों ने जो भी हमारा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, जो भी हम लोगों का इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का सीरम ले लिया एंड उसके सीरम के अंदर अगर आप लोगों को ये एंटीबॉडीज देखने मिलती है अगेंस्ट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द एजेंट XYZ के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज देखने मिलती है तो वी कैन कंक्लूड दैट येस द फिफ्थ क्राइटेरिया इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. And that is written over here itself. That is the fifth criteria states that abhi recently subsequently it was add on, okay, subsequently it was introduced into the picture as the fifth criterion. And उसके हिसाब से कि आपको antibodies जो थी against the causative organism it should be demonstrated in the patient का सीरम के अंदर antibodies आपको देखने मिलने चाहिए against the causative organism, जो कि अभी for the example we can say that is antibodies okay against something called as the XYZ आप लोग को पेशेंट के सीरम में देखने मिल गई, तो फिफ्थ क्राइटेरिया विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड. एंड अल्टीमेटली वी कैन से दैट द XYZ ऑर्गेनिज्म इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ABC डिजीज. ठीक है, ये तो जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था टू अंडरस्टैंड द 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बट द स्टार्टिंग 4 आर लाइक मेनली गिवन बाय रॉबर्ट कॉच. फिफ्थ वन इज लाइक द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड क्राइटेरिया ओवर हियर. ठीक है, सो सारे कॉच पोस्टुलेट एंड उनके फाइंडिंग्स क्लियर हो गई यहाँ तक. डन. नाउ अ क्वेश्चन, क्या सारे ऑर्गेनिज्म, सारे डिजीजेस एंड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके आर दे गोइंग टू सैटिस्फाई ईच एंड एवरी क्राइटेरिया एवरी टाइम? द आंसर इज नो. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट. लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर टू द एक्सेप्शन वाला पार्ट. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है दैट देखो ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल ना, नॉट ऑलवेज इट इज पॉसिबल टू बेसिकली के सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोग के पोस्टुलेट को सैटिस्फाई कर पाए, राइट. देयर कैन बी चांसेस क्या कहीं ना कहीं वो एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया को सैटिस्फाई ना कर पाए. ठीक है, तो उसके एग्जाम मतलब उसके पास उसके एक्सेप्शंस जो होते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं. दैट इज वी हैव माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, वी हैव ट्रेपोनिमा पैलिडम एंड वी हैव नाइसीरिया गोनोरिया एज अ 3 इंपॉर्टेंट ऐसे कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉच पोस्टुलेट को फुली सैटिस्फाई नहीं करते. हाउ टू रिमेंबर द एक्सेप्शन? देयर इज अ स्मॉल निमोनिक टू रिमेंबर दैट इज नो LPG. ठीक है, नो विल रिमाइंड यू दैट दीज ऑर्गेनिजम्स ओके आर द वन विच आर नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई
the Koch postulate. And LPG will remind you of the three causative organisms that are the exceptions to the Koch postulate, and that is nothing but your L stands for leprae, P stands for pallidum, and G stands for gonorrhea. That is Mycobacterium leprae. Then we have the Treponema pallidum and Neisseria gonorrhea. But now can you have a look that Mycobacterium leprae and Treponema pallidum are kept one way and Neisseria gonorrhea is like kept separately. Why is the so? ऐसा क्यों किया हम लोगों ने यहाँ पर? Very simple thing to remember guys, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहली दो जो है द फर्स्ट टू दैट इज एलपीजी में एल एंड पी दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेपेरे एंड ट्रेपोनेमा पैलिडम दीज टू ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट बी ग्रोन इन विट्रो. व्हाट डू यू मीन बाय इन विट्रो नहीं ग्रो कर सकते? मतलब इन ऑर्गेनिजम्स का वी कैन नॉट आइसोलेट दीज ऑर्गेनिजम्स इन प्योर कल्चर्स. यस वी कैन नॉट डू अ कल्चर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म. तो जब भी हम लोग लेपरीसी पढ़ेंगे, जब हम लोग सिफिलिस पढ़ने वाले हैं, अंडर द लैब डायग्नोसिस देयर इज नो कल्चर मीडियाज अवेलेबल. कोई भी कल्चर मीडिया अवेलेबल ही नहीं होगा बिकॉज वी कैन नॉट ग्रो देम इन विट्रो. ठीक है, बट यस एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के अंदर वी कैन. निजेरिया गोनोरिया के लिए इट इज द कंप्लीट ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पे कोई एनिमल मॉडल ही नहीं है. लेकिन यस इट कैन बी ग्रोन इन विट्रो. ठीक है, तो इन शॉर्ट नो एलपीजी इज द निमोनिक टू रिमेंबर द एक्सेप्शंस. ओके, नो विल रिमाइंड कि ये जो तीन ऑर्गेनिज्म P and G they are not going to satisfy the Koch postulate. L stands for Mycobacterium leprae, P stands for Treponema pallidum, G stands for Gonorrhea neisseria. ठीक है, फर्स्ट टू एल एंड पी जो होते हैं हम लोगों के दैट इज लेप्रे एंड पैलिडम, ये दोनों के दोनों दे कैन नॉट बी ग्रोन इन विट्रो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में दे कैन बी ग्रोन. नाइसीरिया गोनोरिया ऑन द अदर हैंड देयर इज नो एनिमल मॉडल बट यस इट कैन बी ग्रोन इन विट्रो. ऑपोजिट है. दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर ओवर हियर. सो डन एंड डस्टेड विद दिस पार्ट एज वेल. तो इतना ही था Koch postulate, नथिंग मोर टू रिमेंबर गाइस. ठीक है, so that is it for this video guys. Thank you so much for watching this session. If you found this content useful, then do like, share and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures. See you all in the next one. Till that time, keep watching, keep studying, and any questions, any queries, comment down. I'm there to answer it. And yeah, once again, thanks for watching. Till that time, bye bye.